studying this book. So we'll go further. And verses we had seen up to 6, 7. We'll go from the 8th verse onward. But before we go further, let's read the 7th verse. और हम पहला पत्रस के पहले अध्याय के 7वें वचन से आगे पढ़ेंगे। Check. The 7th verse reads like this: These have come so that your faith of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may be proved genuine and may result in praise, glory and honor when Jesus Christ is revealed. और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक मूल्यवान है, बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर के कारण ठहरे। The most precious thing that you ever possessed is your faith. और जो भी हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और बहुमूल्य चीज जो हमारे हाथ में है वो है हमारा विश्वास। Do not think that the most precious thing that you have is your house and your car and the gold and the investments. All those, the Bible says, are perishable. और आप कभी इस बात को मत सोचिए कि आपके पास जो सोना, चांदी, घर, कार, ये सब जो चीजें हैं ये आपके जीवन में बहुमूल्य हैं, क्योंकि ये सब चीजें नाशवान हैं। Things that are seen are perishing, but the things that are unseen are eternal, says the word और of God. परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है कि जो चीजें हमें दिखाई देती, हम अपनी आंखों से देखते हैं, वो नाशवान है, लेकिन जो चीजें हम देख नहीं सकते, अदृश्य हैं, वो हमेशा के लिए अनंतकालीन हैं। And I want to request you all that treat your faith as you treat maybe your diamond ring or maybe as a gold chain or even better than that. और इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अपने विश्वास को आप उस तरह से रखवाली करें जिस उससे बढ़कर जिस तरह अपनी बहुमूल्य वस्तुओं की रखवाली करते Because हैं। many people, we especially who believe in Christ, take our faith pretty easy going. और बहुत सारे समय में जो विश्वासी लोग हैं वो अपने विश्वास को बहुत हल्का जानते हैं। And if we lost faith, understand this, we have lost everything. और अगर हम अपने विश्वास को छोड़ दें, अगर हम उसे खो दें, तो हम अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य चीज, हर चीज हम खो देते हैं। And it's better to hold on to faith, and even if you die in faith, the heaven is the reward. और आप अपने विश्वास को पकड़ कर रखें। अगर आप अपने विश्वास को पकड़े पकड़े मर भी जाएं, तो आप स्वर्ग में आपके लिए एक प्रतिफल है। And if you have given up on your faith and have gained the world, the Bible says, what profit it is for a man to gain the whole world and yet lose a soul. और परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है कि अगर आप अपने विश्वास को खो दें और संसार की हर चीज को आप पालें, तो भी उस मनुष्य के लिए सब कुछ विनाश है, क्योंकि आपने अपना बहुमूल्य चीज खो दिया। So consider your faith as very precious that you have received. और अपने विश्वास को इसलिए आपको अपने जीवन में सबसे ज्यादा बहुमूल्य रखना Your है। faith is a gift that the Lord has given you. और आपका विश्वास जो है वो आपको परमेश्वर ने एक वरदान, एक दान के जैसे आपको दिया है। It is not our ability to believe, it is His gift that works in us, enables us to believe in His name. और विश्वास रखना ये आपकी अपनी योग्यता नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर ने आपको दिया है। The Bible says we have been entrusted faith once and for all. और वचन इस तरह से कहता है कि विश्वास एक बार हमेशा के लिए आपको दिया गया। Bible says we have been given a portion of faith. और बाइबल इस तरह से हमें बताती है कि जो विश्वास है उसका एक भाग आपको दिया गया है। In the book of Galatians, where he talks about the gifts, he says the faith is gift of the Spirit. और गलातियों की किताब में इस तरह से आया है कि विश्वास जो है वो एक आत्मा का फल है। So if we treat a heavenly gift better than we treat the worldly gain, there's something wrong with us. अगर हमें जो स्वर्ग से भेंट मिली है हम उसे कम और संसार में जो हमें मिलता है उससे ज्यादा बेहतर समझें, तो हमारे जीवन में कुछ तो भी गड़बड़ी है। Praise the Lord. So okay, we'll go forward and I want us to read from the 8th verse onwards now. और अब हम आगे जाएंगे और उसके 8वें वर्स से आगे हम देखेंगे। And here the 8th verse says, though you have not seen him, you love him, and even though you do not see him now, you believe in him and are filled with an inexpressible and glorious joy. उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है।
Praise the Lord. Praise the Lord. You know, when I newly came to know the Lord way back, it was 97 around. I was getting to know or getting used to it, hearing it. In those days, I heard a new word called the hymns. I did not know. I only knew the songs, filmy songs. A hymn, and I heard this beautiful hymn, which is Blessed Assurance, Jesus is mine. और जब मैं नया नया विश्वास में आ रहा था, ये 97 के करीब की बात है, और तब मैंने परमेश्वर के एक गान को सुना जो बहुत पुराना है कि मराठी में क्या बोला था? नरोज बता, याद है क्या? Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. याद आया क्या? Okay. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, bought with His blood. And then the stanza is so beautiful. This is my story, this is my song. और उसके आगे इस तरह से इस गीत में है कि ये मेरा गान है, ये मेरी कहानी है. And you know, that really touched my heart. और इस गान ने मुझे विशेष रूप से छुआ. I did not know what it is all about, but this is the first time I was hearing something. This is my story, this is my song. It was just echoing in my ears for about 7-8 days since I heard it for the first time. I was not even in faith. और उस समय मैं कुछ नहीं जानता था और ना ही मैं विश्वास में था, लेकिन इस गाने के कुछ लाइंस ने मेरे जीवन में वो गूंजती रही और मुझसे बात करती The Bible रही. talks about here the inexpressible joy. और परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, वर्णन से बाहर. वर्णन से आनंद. बाहर का आनंद. आनंद. Okay, but before we go there, I wanted to see this. Though you have not seen him, you love him. और उससे पहले वचन इस तरह से लिखता है कि उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो. तुमने उसे देखा नहीं फिर भी उससे प्रेम रखते हो. Though you have not seen him, you love him. तुमने उसे देखा नहीं पर तुम उससे प्रेम रखते हो. How does it feel like? और आपको कैसा महसूस होता है ये सुनकर? You know, when I came to know the Lord, I can recollect those moments so distinctly because I knew that I am on my knees crying and I did not know how, but I just fell in love with him. और जब मैं प्रभु को जानने लगा तब मैंने अपने आप का पूरा समर्पण किया और मैंने घुटने टेके और मैं आंसुओं में था और मैं इस बात को जान रहा था कि कुछ अद्भुत मेरे जीवन में हो रहा है. Life of a believer is encircled around this amazing love that we are supposed to be having in our hearts for him. और एक विश्वासी के जीवन में जो है हमारे जीवन को परमेश्वर का प्रेम जो इस तरह से घेर कर रखता है, ये बहुत ही अद्भुत बात In है. the Old Testament, the command was given, love the Lord your God, but there was no capacity given for them to love him और truly. पुराने नियम में आज्ञा तो आई कि तू अपने परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्रेम कर, लेकिन उस प्रेम को कर पाने की ताकत उसमें नहीं थी. That's recorded in the book of Deuteronomy chapter 6 verses 4 and 5. You can read it later, I'm not reading it now. Love the Lord your God with all your heart, with all your might, with all your strength and all that. और व्यवस्था विवरण के 6वें अध्याय में 4थे और 5वें वचन में इस तरह से आया है कि परमेश्वर से तू अपनी सारी शक्ति सारी बुद्धि से प्रेम रख. But then capacity to love him was given to us in the New Testament. लेकिन उससे प्रेम कर पाने की जो क्षमता है वो हमको नए नियम में मिली. The characteristic of a believer in Christ is that he loves the Lord. और जो नए नियम में जो विश्वासी जीवन है उसमें ये मसीही जीवन का चरित्र है कि वो परमेश्वर से प्रेम करता है. And I'm telling you something that if you love him more, love him more, love him even more. और जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं आप उससे और प्रेम कीजिए और प्रेम कीजिए और बढ़कर प्रेम कीजिए. There is no limit to you loving him. और उसकी कोई सीमा नहीं है कि आप परमेश्वर से प्रेम करना किस सीमा तक आपको पहुंचना है. But if you think that the love in your heart is going a bit down, then it's like an alarming thing that we need to wake up to, because remember, this is the warning given in the book of Revelation. You have forsaken your first love. और अगर आपको इस प्रेम के जो आपका सफ़र है उसमें आपको जब कभी इस बात का एहसास हो जाए कि आपका प्रेम जो है वो थोड़ा कम हो गया है या ठंडा हो गया है, तो आप इस बारे में सतर्क हो जाएं, क्योंकि रिवेलेशन जो प्रकाशित वाक्य की किताब है उसमें इस तरह से आया है, परमेश्वर कहता है कि तू अपने प्रेम में ठंडा हो गया. We are supposed to be loving the Lord with single heart devotion. और हमें परमेश्वर से अपने पूरे
मन से, पूरे मन से प्रेम करना है। You know, I don't know how this love for the world creeps in into the lives, but it surely happens because I've seen it in the lives of so many people that it happens. और मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन फिर भी जो संसार का प्रेम है वो लोगों के जीवन में घुस जाता है, कब्जा बना लेता है, और मैंने बहुत जिंदगियों को इसमें जाते देखा है। And lives are destroyed because we do not know how to guard our heart for the love of Lord. और जीवन इसमें नाश हो जाते हैं क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि हमें अपने मन को कैसे गार्ड करना है, उसको कैसे सुरक्षित रखना है, परमेश्वर के प्रेम को कैसे पकड़े रहना है। You know, it says, though you have not seen him, you love him. और यहाँ पर वचन कहता है कि तुम उसको देखते नहीं फिर भी उससे प्रेम करते हो। You don't need to see him to love him. और उसको देखना जरूरी नहीं है उससे प्रेम करने के लिए। You know, I remember a small little story. There was a child back in Sadhu Sundar Singh received from the Lord. He said there was a child who was walking in the garden. और साधु सुंदर सिंह ने इस कहानी को परमेश्वर से सीधे पाया कि एक बच्चा था जो एक बगीचे में घूम रहा था। And his mother hid herself behind some bushes and the trees. और उसकी माँ जो है वो किसी पेड़ पौधे के पीछे छुप गई। And this boy, he was son of a rich man. There were also servants around him. और ये एक धनी व्यक्ति का बच्चा है और उसके आसपास बहुत सारे दास दासियां हैं। And this child, when he could not see the mother, began to cry. और जब इस बच्चे ने अपनी माँ को अपने अराउंड नहीं पाया तो वो रोने लगा। And he began to cry and weep and said, "Mama, my mama, where is my mummy?" और वो जोर जोर से रोने लगा कि मम्मा आप कहाँ हो, कहाँ है मेरी माँ। And the servants were there and they began to kind of, you know, maybe divide his attention and say, "Look at this beautiful flower, look at that beautiful bird." और जो उसके साथ उसके नौकर चाकर थे वो उससे कहने लगे, उसके ध्यान को भटकाने लगे कि तू इधर देख दे, कितने सुंदर फ्लावर हैं, कितने अच्छा सब कुछ है। You look at these yummy, sweet fruits that are hanging on the tree. I'll get you some. और उससे कहने लगे कि तू इन सुंदर फलों को देख, कितने खाने में ये स्वाद रखते हैं, मैं इन्हें तुझे देता हूँ। But then the child began to cry even louder and kept saying that I want my mummy. लेकिन वो बच्चा है वो रोने से रुका नहीं बल्कि और बढ़ बढ़ कर रोने लगा और कहने लगा मुझे मेरी माँ चाहिए And I love her. और मैं उससे प्रेम करता And I हूँ want her. और मुझे वो चाहिए। And her love to me is sweeter than these fruits that are hanging on the tree. और मेरी माँ का जो प्रेम है वो इन फलों से ज्यादा मीठा है। And my mother is more beautiful than these colorful birds that I see on the trees. और मेरी माँ जो है वो इन फूलों से ज्यादा खूबसूरत है। And I want my mummy. I want my और mummy. मुझे मेरी माँ ही चाहिए। And when his mother heard it, she came out of the bushes, grabbed that child into her arms, began to kiss him, and for that child, suddenly this whole garden now became like a paradise. और उस बच्चे की माँ ने जब इन बातों को सुना तो उस झाड़ी के पीछे से निकलकर वो आई और उसे अपनी गोद में लिया, अपनी बाहों में लिया और उसे प्रेम करने लगी। और उस वक्त उस बच्चे के लिए वो जो बगीचा था वो पूरी तरह से बदल कर एक स्वर्ग की तरह उसे लगने लगा। When the child could not see the mother, it was not that his love for the mother ceased. और जब बच्चे ने माँ को नहीं देखा तो इसका ये मतलब नहीं था कि बच्चे का प्रेम उसकी माँ के लिए खत्म हो गया। In fact, he began to even draw closer towards the mother when he could not see her around. और जब उसने अपनी माँ को नहीं देखा तो वो और ज्यादा जिद में रोने लगा कि मुझे मेरी माँ दिखनी चाहिए, मेरी माँ मुझे चाहिए। Just let your heart keep longing for him more and more and more and more. Doesn't matter even if you don't see him. और इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ अपने हृदय को उस अवस्था में रखिए कि आप ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करें, चाहे वो आपको दिखे ना। You know how many of you recollect so distinctly? The Bible says Jesus rose again from the dead. और बाइबल इस तरह से बताती है कि यीशु मसीह जीवित हुआ मरे मुर्दों में से। And then he appeared to his disciples. और वो उसके बाद अपने चेलों को दिखाई दिया। And then he appeared especially to Peter. और उसके बाद वो पतरस को अलग से दिखाई दिया। And then he began to talk to Peter, and it is recorded 3 times in the book of John, chapter 20, verses 15, verses 16, verses 17. One statement. और वहाँ पर वो पीटर से बात करने लगा यूहन्ना की किताब उसके 20वें अध्याय के 15, 16, 17 वर्सेस में। Simon Peter, do you love me? और वहाँ पर यीशु मसीह ने पतरस से एक ही क्वेश्चन को 3 बार पूछा, क्या पतरस तू मुझसे प्रेम करता है? John, the book of John, chapter 20, verses 15, 16, 17, all 3. Okay, it says, Jesus.
No, once again. Go to next 16. No, go forward. No, once again, let me figure it out for you. 21, 20, let me just see this. John 21:15, sorry. 21:15. 21:15. Go to 21. Quickly, okay. And it says, Simon, son of John, do you love me more than these? Go to 16th. It says, Simon, son of John, do you love me? Go to 17. Simon, son of John, do you love me? और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने 3 बार उससे पूछा कि यह पतरस यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम करता You है? know, I think the Lord is asking each one of us the same question. परमेश्वर हम में से हर एक को नाम से पुकार कर पूछ रहा है कि क्या तू मुझसे प्रेम Because I'll करता tell है? you, when you love Him, everything happens automatically. क्योंकि इस बात को आप याद रखिए कि आप अगर परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हर चीज, हर बात आपके जीवन में अपने आप हो जाएगी। Christianity would not be a burden ever to you if you love Him. और अगर आप परमेश्वर से प्रेम करने लगे तो मसीहत जो है वो आपके लिए कभी बोझ के समान ना होगा। Prayer would not be a burden to you if you love Him. और आप अगर परमेश्वर से प्रेम करें, यीशु से प्रेम करें तो प्रार्थना कभी आपके लिए बोझ नहीं हो सकती। Serving Him out there in the society will not be a burden, will not be a tedious command to you. और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर आप परमेश्वर से प्रेम करना, लोगों के बीच में जाकर प्रभु के लिए काम करना। And I have said it earlier and let me restate today. The Bible says these women went to the grave of the Lord Jesus Christ. Why? और आप इस वचनों में इस तरह को आप इस वचन को आप जानते हैं कि यीशु मसीह के मरने के बाद कब्र पर महिलाएं गईं, क्यों? Why did they go there? Because Jesus, who could answer their prayers and bless them, was dead. वो वहाँ इसलिए गई क्योंकि यीशु मसीह जो उनको आशीषें देता था, जो उनकी प्रार्थनाओं को, उनकी रिक्वेस्ट को सुनता था, विनतियों को सुनकर पूरा करता था, वो मर चुका They था। did not go in the hope that He's risen. They went there to put ointment upon His dead body according to the custom. और वो वहाँ इसलिए नहीं गई कि ये विश्वास करके वो वहाँ नहीं पहुंची थी कि यीशु मसीह जिंदा हो गया है, वो सिर्फ इसलिए गई थी कि उसके शरीर पर उन्हें लेप लगाना था। When they found the stone rolled away, body missing, they did not know He's risen from the dead. और इवन उन्होंने जब देखा कि वो जो कब्र है उसका पत्थर हटा दिया गया है और कब्र खाली है, वहाँ पर शरीर नहीं है, तो भी उनके अंदर ये बात चित्त में नहीं चढ़ी कि यीशु मसीह जिंदा हो They चुका were है। standing there crying. The gardener was there. और वो वहाँ पर खड़े खड़े रोने लगे और वहाँ पर जो वहाँ का मालिक था, उसका माली। बगीचे का माली जो था वो वहाँ पर था। And the Bible says these women asked the gardener, Sir, if you have taken his body somewhere, tell us, we'll get him. और ये स्त्रियां जो हैं वो उस माली से कहने लगी कि स्वामी, क्या आपको पता है कि आपने उस बॉडी को कहाँ रख दिया है यहाँ से निकाल कर, क्योंकि हमें उसके पास जाना है। The 12 apostles chosen to be the man of faith who will shake the world upside down are in the hiding. The women who love him, they are at the grave. और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जिसने स्वयं 12 चेलों को चुना था कि वो इस पृथ्वी पर जाकर अद्भुत काम करेंगे, वो लोग छुप कर बैठे हैं, लेकिन महिलाएं जो हैं वो यीशु की कब्र पर खड़ी And हुई रो because रही they हैं। loved him, they became the first eyewitnesses of his glorious resurrection. और चूंकि वो यीशु मसीह से प्रेम करती थी, इसी प्रेम के चलते वो यीशु मसीह की पहली गवाह बनी जो जिन्होंने उसको जीवित पाया। If you love him, he will do great things in you and through your life. और अगर आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो वो आपके जीवन में अद्भुत काम को करेगा और आपके जीवन के द्वारा अद्भुत कामों को करेगा। Don't be a victim of the society's thinking that if I see him, then I will love him. All that is junk. Love him even when you don't see him. और आप कभी भी ये जो आपके आसपास का जो प्रेशर आपके ऊपर बोझ के जैसे आता है कि अगर आप यीशु को देख नहीं सकते तो आप उसको प्रेम नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उससे बिना देखे प्रेम कर सकते हैं। You know, one day you will be with him forever. और एक दिन आप हमेशा के लिए उसके साथ होंगे। And if you don't love him, you wouldn't enjoy. और अगर आप उससे प्रेम नहीं करेंगे तो आप उसका आनंद नहीं उठा सकते। Praise the Lord. Praise the Lord. The second half of the verse says, go back. Okay, yes, yeah. Though you do not see him, you believe in him.
और तुम उसे बिना देखे उस पर विश्वास करते हो। Though you do not see him, you believe in him. तुम उसको देखते नहीं फिर भी उस पर विश्वास रखते हो। Hallelujah. Be crazy enough to believe in him even when we don't see him. और आप अपने जीवन में इस तरह से अपने जीवन को रखिए कि कोई भी चीज हो आप हर परिस्थिति में यीशु को देख सकें, उस Your पर विश्वास रख सकें। Your believing is the assurance of things unseen. और वचन इस तरह से बताता है कि आप जो विश्वासी हैं, जो उस पर विश्वास रखते हैं, उनको प्रमाण है अनदेखी वस्तुओं को दे पाने का। Praise the Lord. Praise the Lord. You know, we don't need to see. There are a lot of people, and even who believe, who say they go to church, they say that we are Christians, and it's not uncommon. We have heard, where is he? और मैं कई बार देखता हूँ कि मैं जब मसीही लोगों से, जो कि उद्धार पाए हुए लोग हैं, जो चर्च में हैं, और वो जब उनसे बातचीत हम करते हैं तो वो कहते हैं कहाँ है वो। If he's there, why is this happening और to उनके me? पास बहुत प्रश्न होते हैं कि अगर वो है तो फिर ऐसा क्यों है। If God is looking at me, then why this problem is happening with me? और अगर परमेश्वर मुझे देख रहा है तो फिर ये समस्या मेरे जीवन में कैसे बनी हुई है। Come on, break all that selfish mindset and rise up, shake the dust off you and be the man and woman God has called you to be. और आप अपने जीवन में इन सारी बातों को पूरी तरह से अपने जीवन से अलग कीजिए। हर एक ऐसी धूल को अपने जीवन से, अपने माइंडसेट से आप अलग करके परमेश्वर के लिए एक अच्छा दास और दासी बन के खड़े होइए। You are called to believe even when you don't see him. और आपकी जो बुलाहट है वो यही है कि आप बिना देखे उस पर विश्वास करेंगे। The Bible says to us 3 times, not just once, 3 times, the just shall live by faith. और बाइबल में 3 बार ये वचन आया है कि मेरा विश्वासी, मेरा धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेगा। We do not live by sight, we live by faith. और हम देखे नहीं जीते, लेकिन हम विश्वास से जीते हैं। We don't need to see to believe that it is. It is. और हमें देखने के लिए हमें विश्वास करने के लिए उसे देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम जानते हैं वो है। Martha and Mary, they were told by the Lord, did I not tell you, if you believe, you will see the glory of God. मरियम और मार्था से यीशु मसीह ने कहा था कि अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। So dare enough to believe even when you don't see. और इसीलिए आप बिना देखे उस पर विश्वास करने की ताकत रखिए। Because remember, what is unseen is more real than this world. और आप इस बात को जानिए कि जो चीजें अदृश्य हैं, जिसे आप देख नहीं सकते, वो ज्यादा रियलिटी है जो हमें आज दिखाई देता है उससे बढ़कर। You know, when the programs happen, there is a stage and there is an entry door for the stage, there is an exit door for the stage. और जब कभी कोई प्रोग्राम होता है तो वहाँ पर एक स्टेज होता है, और वहाँ पर आप देखेंगे 2 दरवाजे होते हैं, एक प्रवेश करने का और एक निकास का। And people come in, those who perform on the stage from one door, they go out from the other door. और आपने देखा होगा कि जो लोग वहाँ पे परफॉर्मेंस करते हैं, जो प्रोग्राम करते हैं, वो एक डोर से अंदर होते हैं और दूसरे डोर से बाहर जाते हैं। But is the world equal to that stage? The world is much larger. और आपको पता है कि संसार, यह दुनिया जो है उससे कहीं बड़ी है, जो स्टेज पे हो रहा है उससे। This world, this life is just the small little stage that we are on. We took an entry called our birth, the exit called the death, but there is whole reality around us which is way too bigger. और जो हमारा जीवन है ये कहीं बड़ा है, लेकिन हमारे जीवन में हम 2 दरवाजे जो परमेश्वर ने ठहराए हैं, एक है जन्म और एक है मृत्यु। उसके बीच का जो समय है वो स्टेज है जिस पर हम रहते हैं। Praise the Lord. There are angels, there are demons, there are seraphims, there are cherubims, और there are 24 elders. और परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है कि स्वर्गदूत हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, वहाँ पर 24 प्राचीन हैं, और परमेश्वर के 12 गोत्र के लोग हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hello, praise the Lord. You know, okay. Have you seen ever a nest, bird's nest? आपने कभी चिड़िया का घोंसला देखा है? How many of you seen bird's nest? Right? Okay. And you would find that the bird comes and lays the eggs there and then hatches them, and now the small chicks come out of those eggs. और आपने देखा होगा कि जो चिड़िया है वो उस घोंसले में घुसती है, वहाँ पर अंडे देती है और उस पर बैठती है, और उसके बाद उससे छोटे छोटे उसके बच्चे पैदा हो जाते हैं।
we have seen in our city, in our balconies, here and there, all over these pigeons, right? और ऐसा कुछ हमने अपने घरों में यहाँ पर बालकनी में देखा है कि कबूतर आते हैं और इस तरह से कुछ वो करते हैं वहाँ। And if you observe carefully, I know you want to clean up and we throw them away, but if you just let them be there and you watch this, after the small little chicks have come out of the eggs, you watch mother coming to them. और आप देखेंगे कि जब वो बच्चे पैदा हो जाते हैं तब जो माँ है उनकी वो उसके पास आती है। Right? Mother comes to them, and when she comes with small little worms or something in its beak to feed the children. और वो जो चिड़िया होती है वो अपने चोंच में छोटे न छोटे जंतुओं को या कीड़ों को लेकर आती है जिसको वो अपने बच्चे को खिला सके। Have you seen it? Yeah? Right? Okay. And you watch carefully and you will see that the moment the mother bird comes, these small chicks, they suddenly become very excited and they open their beaks. और जैसे ही वो माँ उनके पास पहुँचती है ये छोटे बच्चे जो हैं वो बहुत ही उत्साहित हो जाते हैं और अपनी चोंच को खोलने लगते हैं और अपने प्रेम को प्रदर्शित करने लगते हैं। And they open their beak because now they want to be fed. और वो अपनी चोंच को इसलिए खोलते हैं क्योंकि अभी उन्हें खाना चाहिए। They know mother is around. उनको पता है कि उनकी माँ वहाँ पर पास में है। One thing important for you to note, understand, birds' eyes don't open up the moment they hatch out of the eggs. और आप इस बात को जानिए कि जो बच्चा है, जो बच्चे छोटे होते हैं, जब वो पैदा होते हैं तुरंत उनकी आंखें खुलती नहीं, वो देख नहीं सकते। They cannot see the mother around. और वो माँ को अपनी जो उनके पास ही है देख नहीं सकते। But they sense her presence around. लेकिन वो अपनी माँ के उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। And they open their beak to receive the gift. और वो इसलिए जब वो उस चीज़ को महसूस कर लेते हैं और वो बहुत उत्साहित हो जाते हैं और अपनी चोंच को खोलने लगते हैं कि जो उन्हें चाहिए वो मिल जाए। They will now get their food, उन्हें nourishment, health, strength from the mother. और उन्हें अब पता है कि वो अपने खाने को जो उनका है वो उसको मिलने वाला है और उससे वो ताकत पाएंगे अपनी माँ के द्वारा लाए गए खाने से। They don't elbow the sibling and say, it's not our mother, it's somebody else who's brought poison to kill us. और वो अपने आजू बाजू जो और छोटे बच्चे होते हैं उससे वो ये नहीं बोलते कि ये हमारी माँ नहीं है, ये कोई और ही है जिसने जहर लाया और हमें मार डालेगा। Though they do not see her, they believe her and therefore they open their beak and they get nourished in the process. और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बच्चे उस माँ को देख नहीं सकते लेकिन उसको महसूस करते हैं, विश्वास करते हैं और अपनी चोंच को खोलते हैं कि माँ उन्हें खाना खिलाए। Even though you do not see him, believe him. और चूंकि तुम उसे देखते नहीं फिर भी आप उस पर विश्वास कीजिए। And when you believe him, it opens up another dimension of you being constantly nourished, strengthened by him. और जब आप उस पे विश्वास करने लग जाते हैं, आप उस पे अपने विश्वास को टिका देते हैं, तब परमेश्वर का पोषण जो है वो आपके जीवन में बहने लगता है। Be like those chicks, their eyes are closed, they cannot see, but they know it's our mother around us. और वो आप उन छोटे बच्चों के जैसे बन जाइए कि उन्हें दिखाई नहीं देता लेकिन वो जानते हैं कि मेरी माँ मेरे पास है और मुझे उससे नरिशमेंट, मुझे मेरा पोषण मिलेगा। The Bible says, in him we live and move about and have our being. और वचन इस तरह से कहता है कि हम उसी में तो जीते, उसी में घूमते फिरते और अपने जीवन को जीते हैं। In him we live. और उसी में हम जीते हैं। You are surrounded by him. और आप उसके द्वारा घेरे गए हैं, आप उससे कवर्ड हैं। He's saying, though you do not see him, you believe in him. और चूंकि आप उसको देखते नहीं फिर भी उस पर विश्वास रखते हैं। And rejoice with joy. और आप उसके बाद आनंदित होते हैं और मगन होते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. You know, when Christians get excited worshiping him, singing, clapping, praying in tongues and all sorts of things, because we have a joy that cannot be expressed. और जब हम ताली बजाते हैं, हम जोर जोर से गाते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, तो हमारे अंदर जो आनंद है वो हम उसे भले ही एक्सप्रेस ना कर पाए, हम उसे बतला ना पाए, पर वो दिखाई देता है। Praise the Lord. Because it is the matter of joy. The Bible says, joy of the Lord is my strength. और परमेश्वर का वचन इस तरह से आया है कि परमेश्वर का आनंद है वो मेरी ताकत है। Praise the Lord.
Is joy of the Lord your strength? Praise the Lord. Hallelujah. एक साथ मिलकर कहेंगे, परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है. परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत Come है. on, little louder. परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है. परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है. You know, the Bible says, I will rejoice in the God of my salvation. और बाइबल इस तरह से कहती है कि परमेश्वर में मैं आनंदित रहूंगा जो मेरा उद्धार करता है. I don't see him, I love him. I don't see him, I believe in him. मैं And उसे- I'm filled with the inexpressible joy. और मैं उसे देखता नहीं लेकिन उससे प्रेम रखती हूँ. मैं उसे देखती नहीं लेकिन उस पर विश्वास रखती हूँ और मैं उस वजह से आनंद और मगन हूँ. This is my story, this is my song. Praising my Savior all the day long. और ये हम सबकी सच्चाई है. हम सबकी कहानी है कि हम उसमें आनंदित रहते हैं, उसकी स्तुति और उसकी आराधना हमारे मुंह से होती है. Amen. Praise the Lord. Okay, let's go forward. Next verse. 9th. You are receiving the goal of your goal of your faith, the salvation of your souls. और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो. Praise the Lord. The Bible says, okay, obtaining the outcome of your faith, the salvation of your souls. Okay, KJV. NIV, I was reading, for you are receiving the goal of your faith, the salvation of your souls. और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो. Goal of your faith. Ultimate, you know, the consummation of our faith is the being received into His glory. और जो विश्वास का प्रतिफल है वो हम प्राप्त करते हैं. Praise the Lord. परमेश्वर की महिमा में उसके साथ विलीन हो जाना आपके विश्वास का अल्टीमेट मकसद है. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the Bible, I have explained it. We are saved. That means we have been forgiven of all our sins. मैंने कई बार आपको ये बताया है कि हम बचाए गए हैं. इसका मतलब कि हमारे सारे पापों को मिटाया गया है, क्षमा किया गया है. We are being saved. That means our outlook, our opinion, our thinking, our action are being changed by the Spirit of the Lord. और एक सेकेंड स्टेज है जहाँ पर कि हमारा उद्धार हो रहा है. उसका मतलब कि हमारा जो आंतरिक मन है, हमारा जो बाहरी स्वभाव है, वो सब कुछ बदल रहा है. हम परिवर्तित हो रहे हैं. And then we will be saved. That means these bodies will be changed into the eternal, immortal bodies. और एक समय आएगा जब हमारा उद्धार होगा जहाँ पर हमारा ये जो नाशवान शरीर है ये अविनाशिता को पहनेगा और हम हमेशा के लिए जीवित रहेंगे. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yeah, we will have eternal bodies. और हमारे पास अनंतकालीन जीवन होगा, शरीर होगा. Bible says immortal bodies. बिना नाश होने वाली शरीर हमारे पास होगा. अविनाशी शरीर अविनाशी. हमारे पास होगा. बाइबल कहती है अविनाशी शरीर. Praise the Lord. Excited about it? Yes or no? Hallelujah. Correct. So the Bible says you are receiving the goal of your salvation. He's saying goal of your faith, the salvation of your souls. और यहाँ पर वचन इस तरह से आया है कि तुमको विश्वास का प्रतिफल मिलेगा और आत्माओं का उद्धार होगा. You know, we will be received into His glorious presence. It's so amazing. The salvation that we have received, we have no clue how great is that. और कई बार हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि हमने जिस उद्धार को पाया उसमें कितनी बड़ी आशीषें छुपी है. जब हम उसकी महिमा में जाएंगे तब हम इन बातों को समझ पाएंगे. You know, I come, many of you know, all of you know, in fact, that I come from a non-Christian background. I know what it means. और मैं चूंकि एक हिंदू परिवार से आया हूँ, मुझे पता है कि ये बातें क्या हैं. And I want to sound off to you all like the herald, especially those who are born in the Christian families, that you do not know what you've got. और मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को आप समझ नहीं पाते कि आपको परमेश्वर में जो उद्धार मिला है उसमें क्या शामिल है. Don't just say I'm saved, I'm saved, I'm saved. It's way too greater. और आप बार बार बोलते रहते हैं कि मैं बचाया गया, मैं बच गई, मैं मेरा छुटकारा हुआ, लेकिन ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, ये बहुत गहराई की बात है. You know, your name is in the book of life in heaven.
और आपको क्या पता है कि आपके नाम जो हैं वो जीवन की किताब में स्वर्ग में लिखे हुए हैं। Praise the Lord. We are happy that our name is in the Aadhaar book, Aadhaar card. और हम Your- यहाँ पर खुश हो जाते हैं कि हमारे नाम पे आधार कार्ड है। Your name is in the book of life in heaven. और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे नाम जो है वो जीवन की पुस्तक में जो And स्वर्ग the, में रखी and है the लिखे Bible गए says हैं। that since you are in His hand, by no mean He will cast you out. और चूंकि आप उसके हाथ में हैं, आपको वो किसी तरह से तिरस्कृत नहीं करेगा। Praise the Lord. You are eternally secured. और आप हमेशा के लिए अनंतकालीन जीवन के लिए बचाए गए हैं। You know, demons can't do anything to you, devil cannot do anything to you, death cannot do anything to you, grave cannot do anything to you. और आपको ना तो शैतान कुछ कर सकता है आपका, ना दुष्ट आत्मा कुछ कर सकती है, ना मृत्यु आपको कुछ कर सकती है, ना ही कब्र आपका कुछ बिगाड़ सकती है। Praise the Lord. We are saved. क्योंकि हम बचाए हुए लोग हैं। Praise the Lord. Okay, let me go forward. Concerning this salvation, the prophets who spoke of the grace that was to come to you searched intently and with greatest care, trying to find out the time and circumstances to which the Spirit of Christ in them was pointing when He predicted the suffering of Christ and the glories that would follow. Very long sentence. इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों को और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय को की ओर संकेत करता था। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिसका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। Praise the Lord. I told you, in three verses there is one sentence. That's the reason why we read it together. और हमने वो ये तीन जो वचन हमने पढ़े उसमें एक ही वाक्य है, 3 आयतों में एक ही वाक्य है. Praise the Lord. A long sentence. But if you see carefully, it says, concerning this salvation, the prophets who prophesied about the grace that was to be yours searched and inquired. And grace is yours. आपको ये पता है कि अनुग्रह आपका है, Grace is yours. अनुग्रह आपका है। Praise the Lord. The Bible says in the book of Titus 2:12, 11 and 12, in fact, that the grace of God that brings salvation has appeared to all men. और जो तीतुस की किताब है उसके दूसरे चैप्टर में 11 और 12 में 11 और 12 में इस तरह से आया है कि जो परमेश्वर का जो उद्धार है वो सब मनुष्यों के लिए आया। Praise the Lord. परमेश्वर का अनुग्रह जो मनुष्यों के उद्धार का कारण है, सब मनुष्यों पर प्रकट हुआ है। Praise the Lord. Hallelujah. It has appeared to us all. It's been given to us all. और परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो सब लोगों के लिए, हम सब के लिए। And it says that the prophets who were prophesying about the grace which was to come on us, on whom? Us. On us. Grace did not come on them. और भविष्यवाणी जो हुई उस समय में भविष्यवक्ताओं के द्वारा जिस अनुग्रह के विषय में वो बोलते थे, वो अनुग्रह हम पर उतरा, वो अनुग्रह भविष्यवक्ताओं पर नहीं उतरा था। Praise the Lord. The man who was prophesying was not receiving the grace. और जो व्यक्ति भविष्यवाणी कर रहा है वो उस अनुग्रह से वंचित है, उसको वो अनुग्रह नहीं मिला है। It's like you feeding somebody but you yourself are hungry. ये इस तरह से हो गया कि आप किसी को खाना खिला रहे हैं लेकिन आप खुद भूखे हैं। This is what was the story of the prophets. और ये था भविष्यवक्ताओं का काल, उनका जीवन का समय। Because they were talking about in the last days, says the Lord, I will make a new covenant with the house of Israel. It will not be like the covenant that I made with their forefathers. In those days, I will not remember their sins, and I'll forgive their transgressions freely. I will write my ordinances and commandments upon the tablet of their heart. I'll put my spirit in them. I'll make them walk in my path. I'll live among them. I'll walk among them. They'll be my people. I'll be their God. I mean,
this is what they are crying, but they don't know. और उस समय जो भविष्यवाणियां हुआ करती थी भविष्यवक्ताओं के द्वारा इस तरह से थी कि उन दिनों में मैं अपना आत्मा अपने लोगों पर उंडेलूंगा और उन्हें मैं अपनी आत्मा से भर दूंगा और अपनी चितौनियों और विधियों को उनके हृदय पे लिखूंगा और उनके साथ में नई वाचा बांधूंगा और मैं उनके साथ रहूंगा. The Bible says the prophets were searching carefully what it was all about. और जब भविष्यवक्ता इस बात को कह रहे थे तो वो इस बात की खोजबीन कर रहे थे कि ये क्या बातें हैं, किसके लिए लिखी गई हैं. Do you know? Okay, let me look at me here. 1 Corinthians 13 and verses 2 says, if I have the gift of prophecy and I can fathom all mysteries. और वचन इस तरह से पहला कुरिन्थियों उसके 13 अध्याय में इस तरह से आया है कि अगर मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सारी गुप्त बातों को मैं समझ सकूं. Praise the Lord. Prophetic gift actually empowers them to understand mysteries. और जो भविष्यवाणी जो है वो एक ऐसा वरदान है जो रहस्य की बातों को गुप्त बातों को वो समझ पाते हैं. But then this was such a mystery that God did not even reveal it to them. और ये एक ऐसा रहस्य था जिसको वो भविष्यवक्ता समझ नहीं पाए उन दिनों में. Isaiah kept crying, a virgin shall conceive and will bring forth a son. He kept saying to us, a child is born, to us a son is given. But they did not know what it is all about. और यशायाह ने अपनी किताब में इस बात की भविष्यवाणियों को लिखा है कि एक कुमारी जो है वो गर्भवती होगी और उससे एक पुत्र उत्पन्न होगा और वो इस तरह का होगा, लेकिन उसे कुछ नहीं पता था कि वो किन बातों के किस समय के विषय में इन बातों को कह रहा है. If you once you go to heaven and you be there and you meet up with Isaiah, ask him, what would you have done to trade your place with mine? If you could be born in my time and my era and be here. और अगर आप जब स्वर्ग पहुंचेंगे आप यशायाह से पूछ के देखिएगा कि क्या ऐसा अगर हम अपने समय को बदल दें, क्या आप प्रेफर करेंगे, आप क्या चुनाव करेंगे कि आप मेरे जगह आ जाएं and मैं आपकी जगह. And he would for sure say that I would have traded anything and everything to be born in the last days where you were born in the church of the Lord Jesus Christ. और यशायाह आपको डेफिनेटली आंसर देगा कि मैं अपना सब कुछ दे करके आपकी जगह को लेना चाहूंगा क्योंकि ये समय अद्भुत है, चर्च का समय, अनुग्रह का समय. The Bible says, go to the next verse, inquiring what person or time the Spirit of Christ in them was indicating. There was a season that the Lord was showing is coming upon the planet. It is unlike any other season in the past. और ये वो समय था जहाँ पर परमेश्वर अपने आने के विषय में कह रहा था और ये वो जो भविष्यवक्ता थे वो इस बात की ही खोज में थे कि ये किस समय के बारे में संकेत कर रहा है. There was a season of Abraham, Isaac and Jacob. There was a season of Moses. There was a season of all these great men who've gone. और हम इस बात को जानते हैं कि एक समय, हर एक का एक समय था. जैसे अब्राहम, इसहाक और याकूब का एक समय था, फिर समय आया मूसा का, फिर समय आया अलग उसके अभिषिक्तों का. We are living in the greatest season that the world has ever experienced. और हम जो जिस समय में हम रह रहे हैं ये समय सबसे ज्यादा आशीष और बहुमूल्य समय है जो परमेश्वर के अनुग्रह का समय है. The Bible calls it the dispensation of grace. और ये जो समय है ये कहलाता है अनुग्रह का समय. अनुग्रह काल. This is called the dispensation of grace. अनुग्रह काल. और इस समय को हम अनुग्रह काल कहते हैं. And the Bible says, as many or whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. और परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है कि जो कोई परमेश्वर के नाम को पुकारेगा वो बचाया जाएगा. Praise the Lord. Praise the Lord. A man like David was told, because you have done this, I'll forgive you, but the sword will never leave your house. और दाऊद से परमेश्वर ने कहा था, चूंकि तूने इस काम को किया है मैं तुझे क्षमा करता हूँ, लेकिन तेरे परिवार से तलवार कभी ना हटेगी. He was a man after God's own heart, but the sword never left his house. दाऊद से परमेश्वर ने कहा कि तू मेरे मन मुताबिक व्यक्ति है, पर भी तलवार तेरे घराने से ना हटेगी. Imagine us. और अपने आप को सोच के देखिए.
We have done everything wrong but justified in His eyes. और हमने सब कुछ गलत किया, सब कुछ, लेकिन परमेश्वर ने हमें फिर भी निष्पाप We ठहराया। have broken all the commandments but He still loves us. और हमने सारी आज्ञाओं को तोड़ा, लेकिन परमेश्वर आज भी हमसे प्रेम करता The है। sword that was supposed to be on me and my household, Jesus bore it upon the cross. और जो तलवार मुझ पर और मेरे परिवार पे होना था, उसे यीशु मसीह ने पहले ही ले लिया। The only thing that flows towards me now is the grace and the blessing and the grace and blessings. और आज जो हमारे पास पहुंच रहा है वो सिर्फ अनुग्रह और आशीषें, अनुग्रह और आशीषें हैं। No wonder prophets said, what is this time? What is this season that we are talking about? And it was not revealed to them what it is. और इसीलिए भविष्यवक्ता जो थे वो बेचैन थे कि हम किस समय और किन लोगों के विषय में बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं पता था। You know, they predicted the suffering of Christ and the glories that will follow. और उन्होंने इस बात को समझा कि परमेश्वर कि मसीहा जो है वो दुख उठाएगा और उसके पश्चात महिमा उंडेली जाएगी, और उन्हें इस विषय में कुछ पता नहीं था। You know, you can read the book of Daniel chapter 9 and verses 26 onwards. If you read, you can go back and read that. It says from the time the commandment would go out, there'll be 7 weeks, then 62 weeks, and the last week it says, before the last week it says, after the end of 67 weeks and 62 weeks, the anointed one, Messiah, will be cut off. और अगर आप दानियल की किताब के 9 चैप्टर से आगे पढ़ेंगे तो उसमें इस बात का जिक्र आया है कि 7 सप्ताह ठहराए गए, उसके बाद 62 सप्ताह होंगे, और उसके बाद में जो यीशु मसीह है, जो मसीहा है, वो बलिदान किया जाएगा। And then the glories followed us. और उसके बाद जो है महिमा हम पर आएगी। Praise the Lord. David wrote, His goodness and mercy shall follow me all the days of my life. It is following us. और दाऊद ने अपने दिनों में कहा कि उसकी महिमा और उसकी भलाई मेरा पीछा करेगी, और आज हम उन आशीषों को अपने जीवन में देखते हैं। If you go forward to this 12th verse, go to the 12th verse, it says towards the end, if you see this carefully, you know, things into which angels long to look. Even not just the prophets, angels wanted to know what is this. और इन बातों के विषय में इवन स्वर्गदूत जो हैं वो ध्यान से उस बातों की खोजबीन करते हैं, उसे जानने की लालसा रखते हैं। Because remember, one angel, when he sinned, he was kicked out. The angels know pretty well the God is righteous judge. और हम इस बात को जानते हैं कि जिस स्वर्गदूत ने परमेश्वर के सामने गलत अपने आप को ठहराया, परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से निकाल दिया, उसे फेंक दिया। You know, the prophets knew the judgment of God, the angels knew judgment of God. They both wanted to look into this glorious time. What is this? और हम वचन में इस तरह से देखते हैं कि जो भविष्यवक्ता थे उनको मालूम था कि एक समय है न्याय का, इवन स्वर्गदूतों को मालूम है एक समय है न्याय का, लेकिन वो लोग इस बात से टोटली अनजान थे कि ये किस समय की बात हो रही है जहाँ पर अनुग्रह की बातें आती हैं। This is our time. और ये हमारा समय है। When His mercy, His goodness follows us. जब उसकी दया और उसकी भलाई हमारे ऊपर गिरती है। When His abundant grace is poured out upon our lives. और उसका असीमित जो अनुग्रह है वो हमारे ऊपर बहाया जा रहा है। This is our time when before we even say, "Oh Lord," He says, "Here I am. Tell me." और इससे पहले कि हम उसे पुकारें कि प्रभु तू कहाँ है, वो हमारे पास होता है, वो कहता है मैं यहाँ हूँ। It is our time about which He said that the works that I do, you will do also, even greater works than these. और ये वो Imagine. समय है जहाँ पर परमेश्वर कहता है कि जो काम मैं करता हूँ तुम उससे भी बड़े-बड़े काम करोगे, ये वो समय है। Praise the Lord. We are living in the most glorious time earth has ever seen. और हम अपने इस पूरे जर्नी में, ये जो पृथ्वी जिसमें है, उसमें हम अपने समय में सबसे बहुमूल्य समय में परमेश्वर ने हमें रखा है। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. And I want to again remind you, I mean, of course, there's so much. We have the Lord's Supper also, and therefore I want to bring it to the close. It says here that the Holy Spirit was prophesying through the prophets, and Holy Spirit spoke through the man who told us the gospel. So it was the same Holy Spirit. In fact, the Bible calls it here the Spirit of Christ. और हम सब जानते हैं कि जो पवित्र आत्मा है उसी के द्वारा, उसी ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात की, और वही पवित्र आत्मा अपने आज के समय में हमारे ऊपर अपने अनुग्रह को खोला है, और ये पवित्र आत्मा जो है वो यीशु मसीह का आत्मा है। Praise the Lord. Prophets had no clue, Spirit of Christ. They did not even know about Christ and His Spirit. और जो उस समय भविष्यवक्ता थे उन्हें बिल्कुल भी इस बात की समझ नहीं थी कि एक आत्मा यीशु का एक आत्मा है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. You know, so it says the Spirit of the Lord
through prophets spoke about something, the same content Holy Spirit took through the apostles, gave it to us. Now we have heard the message of this grace. और वही पवित्र आत्मा भविष्यद्वक्ताओं में होकर बात किया, वही पवित्र आत्मा प्रेरितों में होकर हमसे बात किया, और वो समय है ये अनुग्रह का जहाँ पवित्र आत्मा काम कर रहा है। Praise the Lord. Praise the Lord. Can I tell you something very important? There is something called considering what we have received as precious. और मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको इस बात पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आप उस चीज़ को जो आपने यीशु मसीह से पाया है उसको सबसे बहुमूल्य जाने। Consider it precious. उसको सबसे ज़्यादा बहुमूल्य जाने। Because what you have received, prophets wanted to receive. What you have received, angels wanted to receive, but God did not give it to them. He gave it to you and me. क्योंकि ये वो चीज़ है जो हमने पाई है, जिसे भविष्यद्वक्ता पाना चाहते थे लेकिन उन्हें नहीं मिला, उन्हें स्वर्गदूत पाना चाहते थे, उन्हें भी नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर ने बड़े अनुग्रह से हमें वो समय दिया है। Praise the Lord. You know, the Bible says, you know, this is words of Jesus, do not cast pearls before pigs. और यीशु मसीह ने कहा था कि अपने जो बहुमूल्य मोती हैं वो सूअरों के आगे मत डालो। It will trample them underfoot, turn and tear you to pieces. और उसमें आगे इस तरह से आया है कि वो उस पर उसको कुचलेंगे, उसको रौंदेंगे और तुम पर हावी हो जाएंगे। You know what is that principle? The principle is pearls are valuable, but the pig has no. बहुमूल्य है लेकिन सुअर को नहीं पता कि वो बहुमूल्य मोती है। You understood what I'm saying? You know, the pigs do not know the value of pearls. और सुअर जो है उसको बहुमूल्य मोती का कीमत नहीं पता। So no matter what you give somebody, when he doesn't consider it valuable, it has got no proposition of value to that individual. और हो सकता है आप जब किसी जीवन में जाकर उस बात को कहते हैं और वो उस पर ध्यान नहीं देता, उसको इग्नोर करता है, तो वो हो सकता है कि उसे उस बात का एहसास ही ना हो, उस वैल्यू का या उस बहुमूल्यता का जो उस चीज में जो आपने उससे शेयर की है। The faith that you have received, the grace that you have received, the gospel that you have received is the most precious thing that you have. जो विश्वास आपने रिसीव किया है, जो आपने अनुग्रह को पाया है और जो सुसमाचार आपने रिसीव किया, जिसको आपने प्राप्त किया, वो सबसे ज्यादा बहुमूल्य है। Give up anything and everything, but not this. आप सब कुछ छोड़ सकते हैं, सब कुछ छोड़ दीजिए, लेकिन इन बातों के साथ कभी समझौता मत कीजिए। Praise the Lord. Praise the Lord. Worship team can come forward, please. Worship team के लोग सामने आ जाइए जरा जल्दी से. Praise the Lord. So I want to challenge you. I want to challenge you that consider your faith, the grace that you have, love that you have for the Lord as the most precious thing. और आपके पास जो विश्वास है, आपके पास जो अनुग्रह है, आपके पास जो प्रेम है परमेश्वर का, वो सबसे ज्यादा बहुमूल्य है। इस बात पर आप विश्वास कीजिए। Praise the Lord. Praise the Lord. Though you do not see him, you love him. आप उसको देखते नहीं लेकिन आप फिर भी उससे प्रेम करते हैं। Though you do not see him, you believe in him. आप उसको देखते नहीं लेकिन फिर भी आप उस पर विश्वास करते हैं। And what he has done, the angels wanted to look into, the prophets wanted to have it, but he has given it to you. Consider it precious. और जो कुछ आपको मिला है उसको एक समय में भविष्यद्वक्ता लेना चाहते थे, उन चीजों को प्राप्त करने की इच्छा स्वर्गदूतों में थी लेकिन उन्हें नहीं मिला। जो आपको मिला है वो बहुत बहुमूल्य है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. You have received the best. हमने जो पाया है वो सबसे उत्तम है। Consider it highly, highly, highly valuable. और उसको आप सबसे ज्यादा अपने जीवन में महत्व दें। That is the reason why now we will understand why people, when they were being given offer, you renounce Christ, otherwise we will saw you into two parts. They said, gladly do it, I will not deny him. आप अगर इन बातों को समझ पाए हैं तो आपके लिए बहुत आसान होगा इस बात को समझना, जब लोगों को बीच से चीर दिया गया, अगर वो परमेश्वर का इनकार ना करें, पर वो खुश थे और वो चीरे गए, लेकिन उन्होंने उस चीज से होकर वो गुजर गए, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने क्या पाया है। Ignatius was put on the stalks of wood and said, you deny Christ, otherwise we'll burn you alive. And he said, gladly do it, I am willing. और कुछ विश्वासियों के साथ ऐसा हुआ कि उन्हें लकड़ियों के ढेर पे रख दिया गया और कहा कि यीशु मसीह का इनकार करो, नहीं तो हम तुम्हें जिंदा जला देंगे। उन्होंने कहा हमें जला दो।
the most precious thing that we have सबसे our- बहुमूल्य चीज is the Lord Jesus Christ. वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। Amen. आमेन। I do not see him, I still love him. I don't see him, I still believe in him. मैं उसे नहीं देखती लेकिन उससे प्रेम करती हूँ, मैं उसे नहीं देखती फिर भी उस पर विश्वास रखती हूँ। Amen. ठीक, हालेलुया। Okay. अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम इस गीत